Hello everyone, welcome to another fascinating episode of CG Innovate. Today, it is actually a great moment for any teacher to see his pupil succeed. So today I'm exceptionally proud of Mr. Shiv Kumar, who is the guest here. He has been an emerging, quite successful and a very talented film writer as well as director. He has won many awards for his work and has expanded from commercial to creative to even government empowerment at various facilities. So, without further ado, I welcome Mr. Shiv Kumar, who is the founder for KSK Works. Shiv, thanks a lot for being here. It means a lot to us. And Thank you, sir. yeah, and without everybody would like to know your journey because I would say the path not taken sort of a field, and you have, I think, since very early age you were very interested in cinematography and direction. So in brief, it would be very good if you could share with us your journey. Sure, sir. First of all, thank you, TechMint and CG Innovate to start such platforms because as you said, the path untaken. So likewise, this is something which not even no one has just think about to start such things in Chhattisgarh. So yeah. So first of all, thank you and thank you to Manish sir as well. Yeah. So apart from this, the journey, like how it started. So I'll just share a small incident, like how it all started. I was doing my MBA, and during the time of our MBA, we have this freshers party. Yeah, we can call this juniors ko fresher party. So for that, we have to develop one skit. So we thought of developing a skit. So till then, I was unaware about this filmmaking and anything sort of like this. So my HOD has just called me and gave this responsibility of creating a skit with the students of our class. So after that, I thought of I googled it ki skit hota kya hai, because I was not aware of anything. And the theme is also very choosy, like कि ऐसा नहीं कि कोई भी theme हो, it should be relevant to the freshers party. So I just talked to few of my friends, उनको मैंने train किया, उनके साथ एक performance दिया, उनको ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत जो मेरे को ज्ञान आता था उसने दिया. और हुआ ये कि जब वो स्किट वहां पे जब प्ले हो रहा था, उसके कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक हम लोगों ने लाउड स्पीकर में बजाया, सब चीज हुआ. वो मोमेंट बहुत मैजिकल था. और जैसी वो स्किट कंप्लीट हुआ, मेरे एचओडी के आंखों में टीयर्स थे. और सब लोग थोड़े से इतने, वो 1 मिनट 2 मिनट का जो स्किट था, उसमें सब लोग ऐसा मैजिक सा हो गया कि सब लोग उसी में ही बंधे रहे. सो बैक स्टेज में ये ऑब्जर्व कर रहा था कि ये समथिंग कि मैंने इसको किया और सब लोग ऐसे हिप्नोटाइज हो गए. तो दैट डे दिस थिंग ट्रिगर्ड कि यार कि फिल्म मेकिंग मतलब इतना बड़ा चीज है कि आप लोगों को, एक ऑडियंस को ऐसे करके पूरा मैजिकली उनको उस वर्ल्ड में ही क्रिएट करते हैं कि जो कुछ होता भी नहीं है, लेकिन उसको वर्ल्ड को छोटा सा ही चीज है लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल चीज है. सो दैट्स हाउ स्टार्टेड द जर्नी ऑफ KSK Filmworks in 2016. Till then, now it's just moving on. Fingers crossed. Yeah, so let me add that Shiv is very humble. Recently, KSK Works, directed by a film by KSK's father Wilson, was it captured the fancy of a lot of people. As first, it was a horror movie. Second, it was Vintage. revolutionary Vintage from. Pardon? Vintage theme. It was a Yeah, vintage. yeah. It had a vintage theme, and it just caught the fancy that such a movie from Chhattisgarh has been made. And his other movies as well, Save, Die, have also been quite popular. So Shiv, if in brief, if you could tell us about your most interesting experiences while shooting these movies, and how any exceptional thing regarding them. Yeah. So exceptional thing, nothing like that. But the every film, like gradually from the 2016 to 2021, which every films we have
like learned and we have evolved and we have like because filmmaking is a ocean, because every day you keep on learning, और हर बार ऐसा लगता है कि ये एक चीज नया है, ये एक चीज नया है. So we just keep on evolving things, start from me, start from my team, my post production team, who is still with me from 2016, the only post production guy. He's a one man army for us. He's the backbone of KSK Filmworks. And a few cinematographers are also there which were throughout the journey, who themselves have also evolved. And the big thing is we didn't have any degree or experience sort of thing, like कि किसी के पास कुछ ऐसी कोई डिग्री नहीं है, कोई मुंबई का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि जो लोगों को हमको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा कि या बाकियों के देखा जाए तो ओवर द पीरियड वी evolved, लाइक ओवर द पीरियड की जब हम लोग अभी भी अपने पुराने काम को देखते हैं तो वी जस्ट हंसी आती है कि लाइक कि वो क्या था, हम क्या बनाते थे और अभी क्या बना रहे हैं. एंड बिकॉज आई एम अ साउथ इंडियन, तो विशाखापट्टनम इज माय बर्थ प्लेस. सो विशाखापट्टनम में बहुत पॉपुलर है कि वहाँ पे हर दूसरा तीसरा फिल्म मेकर रहता है और वहाँ पे इंडस्ट्री बड़ी वास्ट है. सो इसका एक फायदा स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि वहाँ की इंडस्ट्री से मैं कुछ टेक्निकल टीम्स को यहाँ पर सपोर्ट के लिए बुलाऊं, बट ओवर द पीरियड मैंने देखा कि वो हर बार पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज एक आध आप प्रोजेक्ट के लिए आप एक्सेप्शनल ले सकते हैं. सो व्हेन द फर्स्ट फिल्म ऑफ माइन इन लव विथ हिम, उसमें मैंने यहाँ के बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, बिकॉज तब मेरे लिए कुछ नया, मतलब पूरा ही नया था, तो आई हैव दिस स्टोरी, वन स्टोरी जिसको मेरे को बतानी थी, बट मेरे पास टीम नहीं थी. आई डोंट हैव टेक्निकल टीम, टेक्निकल सपोर्ट, बट आई वांटेड टू क्रिएट दिस थिंग एंड टेल, मतलब लोगों को बताना था ये चीज, बट वो सपोर्ट नहीं था. Then I started, then I gone to Visakhapatnam. I told them कि this is the story which I wanted to tell, and being with me management guy, ये बहुत easy हो जाता है कि लोगों को convince करने के लिए without any big financial amount या charges. तो बहुत सारी उनको convince किया तो they agreed. तो वो लोग यहाँ पर आके, जो लोग यहाँ पे फिल्म मेकर्स अपने आप को बोलते थे उस टाइम पे, जो उन्होंने नहीं करके दिखाया और उन्होंने एक दिन में करके दिखाया. सो वो एक और आई ओपनर था मेरे लिए कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी इतने रिनाउंड है, उनसे वो चीज नहीं हो पाई जो कि बाहर से आके वो चीज उन लोगों ने एक बार में कर दिया. सो दैट्स हाउ देन आई स्टार्टेड कि एक एक जो हमारी टीम है उसको हमने रिकॉग्नाइज किया, उनसे हमने प्रैक्टिस हुआ और उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशंस, और ओवर द पीरियड फिर वो एक फैमिली जैसे बन गई. और आज मैं हमेशा यही बोलता हूँ, द गुड थिंग एंड द बैड थिंग अबाउट फिल्म मेकिंग इज टीम वर्क. If your team is good enough, then you can pull out any possible thing. And the bad thing is कि you can't do anything without a team. So this is how the thing. Okay. Very fascinating, Shiv. So as you know, economy goes up and down, and the jobs are created, jobs are destroyed. It goes on, and a lot of people who are stuck in jobs they don't love. So, Yeah. I would like to ask you if you have suggestions for the youth in joining creative professions like filmmaking, and enumerate a few of the viable options that graduates can pursue. And I think that there would be some space for them to make their mark instead of just going by the common jobs, right? Thank you. Yeah. So this is very important questions, or rather it's a very important thing which you just arised, because filmmaking, when I started, I was also looking, I was also very doubtful ki how long I can take this off as a career, as a profession, or as a source of income for myself. But over the period what I realized is कि यहाँ पे most of the thing, जो youngsters है, जो youth है, they are more into the commercial part rather than the professional part. What I mean to say is कि यहाँ पर ठीक है, आपके पास थोड़ा बहुत टैलेंट है, आपके पास थोड़ा बहुत स्किल्स है, तो आप उसको कैमरे को लेके डायरेक्ट वहाँ पर आपका
नेगोशिएशन में आ जाते हैं. यू जस्ट शेयर योर कमर्शियल्स लाइक एनीथिंग विदाउट सीइंग योर प्रोफेशनल ग्राफ, कि कोई अगर तुमको इतना XYZ अमाउंट पे कर रहा है, और उसको पे करने के पहले आप ये देखिए ना कि आप कितने वर्थ है, मतलब आप कितने उस अमाउंट के वर्थ है. बट यहाँ पर चीज यहीं पे इग्नोर कर देते हैं यहाँ के मोस्ट ऑफ द यूथ. एज अ करियर ऑप्शन इसको चूज करने के पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने पानी में हैं. बिकॉज मोस्टली यहाँ पे लोग वैसे ही करते हैं कि नहीं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है. बट यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि आपको मार्केट और अपने आप को दोनों को कैसे बैलेंस करना है. बिकॉज मार्केट इज समथिंग कि दे नेवर गोइंग टू पे एनी ह्यूज अमाउंट फॉर दिस सच थिंग. बिकॉज यहाँ पे वो मार्केट है ही नहीं कि अभी, होपफुली वो अभी डेवलप हो रहा है, एड्स का, कमर्शियल का यहाँ पे मार्केट आ रहा है. बट स्टिल लोगों को यही लगता है कि मुंबई और दिल्ली में ही अच्छा काम होता है, यहाँ पे तो लोग दे डोंट टेक इट दैट वे. सो यहाँ पे उनका भी गलती नहीं है, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू शो what you can give the best you want. At the same time the commercial part उनके एंड से देखिए कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो why should anyone just pay you XYZ amount which you are asking for, right? तो ये पहला थिंग है जो यहाँ पे बहुत से यूथ और बहुत से लोग अपने आप को मतलब बोलते हैं कि इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, या मेरे ख्याल से हर्डल वही एक है जो आगे मतलब प्रोफेशन में इसको एज ए करियर ऑप्ट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है. एंड द सेकेंड थिंग कि मोस्टली यहाँ पे यहाँ का जो मार्केट है, यहाँ का जो छत्तीसगढ़ी फिल्म का जो मार्केट है, दैट्स ए वेरी वर्जिन मार्केट इन आवर सेंस, कि वहां पे अभी तक कुछ ऐसा रिवॉल्यूशनरी मतलब फिल्में बन रही हैं, लेकिन एज ए आउटसाइडर के लिए बहुत फ्रेश अपॉर्चुनिटीज भी हैं. एक जो क्राफ्ट है वो भी मतलब इतना फ्रेश है, बिकॉज छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज इटसेल्फ मोस्टली डिराइव फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज. क्योंकि जो छत्तीसगढ़ी, जो हिंदी वाला है वो भी अपने रीजनल छत्तीसगढ़ी को समझ जाएगा. अच्छा, यही हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का. बिकॉज अगर आप बंगाल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ के रीजनल सिनेमास में क्या है कि आपको हिंदी वाला आदमी वो समझ नहीं पाएगा जो वो लैंग्वेज. बट यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी जो इंटर रिलेटेड काइंड ऑफ है, वो चीज बहुत अच्छी बात है. और मोस्टली यूथ यहाँ पे rather than creating opportunities for themselves in the local market, they just move on to Mumbai or any other markets. और वहां पर जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है विथ लॉट्स ऑफ कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है. सो जो सरवाइव कर जाता है, जो लोग क्लिक हो जाते हैं वो लोग हो जाते हैं. बट जो लोग नहीं होते हैं वो अपने मोरल को डाउन कर लेते हैं. फिर उनको लगता है कि ये करियर हमारे लिए है ही नहीं, ये हम इसके लिए बने ही नहीं है, XYZ जो थॉट्स आते हैं. फिर ओवरली इवेंचुअली फिर वो करियर ही छोड़ना पड़ता है उनको, और जो वो एक आर्टिस्ट उनके अंदर का रहता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है. सो फॉर देम ऑल्सो, फॉर देम ओनली वी आर जस्ट ट्राइंग दिस आवर न्यू थिंग. जो हमारा फीचर फिल्म है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे रीजनल छत्तीसगढ़ी में हम लोग बना रहे हैं, जस्ट टू शो कि हम भी यहाँ पे अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, हमारे लिए भी अच्छा मार्केट है. और जो अभी गवर्नमेंट के जो सब्सिडी स्कीम्स हैं, जो छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए अच्छी खासी सब्सिडी भी अभी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. सो दिस इज द लाइक गुड थिंग. और अभी दिस इज द राइट टाइम फॉर स्टार्ट थिंकिंग फॉर दिस छत्तीसगढ़ी सिनेमा. एंड यहाँ पे अभी रीजनल OTTs का भी बात चल रही है कि यहाँ पे रीजनल OTTs भी आ रहे हैं करके. सो दैट्स ऑल कि अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, बस इट्स द कि आप किस नजरिए से उसको देखते हैं, इट्स अप टू यू. Okay, thanks Shiv. Thanks for explaining the challenges and opportunities of the industry. So it has been great talking to you. Thank you. And we hope that the audience will definitely go for and watch your movies. Where can they reach you, and where can they find your work? They can find in our YouTube channel KSK Filmworks. You can just search it on YouTube. Just go to the search bar, KSK FILMWRKS. So there is a playlist of corporate films, then commercial ads, then short films, documentary films. They can find everything there. Cool. Playlist. Okay. So I hope the audience will definitely go and visit your work.
And from the CG Innovate team and Technology, we wish you spectacular success ahead. And we would, we can touch base again once you have created more and more movies to have a dialogue again. Thanks a lot Thank you. for Same here. coming with this. Yeah, take Thank care. you, sir. Yeah.